Good morning. In the previous class, we had done illustrations of reconstitution of partnership. Now today we will discuss about revaluation expenses, and then we will do another, we'll understand the concept of capital adjustments also today. And then we will do another illustration involving capital adjustments. So let's begin. Write down for amount payable to a partner as remuneration for reconstitution. When the partnership firm is being reconstituted, various assets are to be revalued. Liabilities are to be reassessed. For all this work, one or more of the partners may be assigned to carry out all these tasks, and that partner or those partners may be provided a remuneration by the firm for their services of getting the assets revalued and liabilities reassessed. In such a case, the entry passed is revaluation account debit to partners capital account. जिस पार्टनर को भी रेम्यूनरेशन फर्म ने प्रोवाइड कर रही है फर्म रिवैल्यूएशन कराने के लिए, उसकी कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे और रीवैल्यूएशन अकाउंट में ये एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा. रिकॉन्स्टिट्यूशन एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस होंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन करने में, सपोज बिल्डिंग की रीवैल्यू करवा रहे हैं, उसके लिए किसी वैल्यूअर को, आर्किटेक्ट को कांटेक्ट किया, उन्हें फीस पे की. Similarly, in revaluation of other assets, in reassessment of other liabilities, several expenses may be incurred. These are called reconstitution expenses or revaluation expenses. These are to be borne by the firm unless specified otherwise. Whether remuneration is paid to a partner for reconstitution or not. Suppose ABC are partners, B has been given a task to get the assets and liabilities revalued and reassessed, and has been provided a remuneration of 10,000 rupees for it. तो पहली एंट्री तो हो गई रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट 10,000. बी को अगर ये रेम्यूनरेशन प्रोवाइड की गई है, then whatever expenses will be incurred for revaluation purpose, they will be borne by the firm, not by B, unless and until the question specifically states that the revaluation or reconstitution expenses are to be borne by B or any other partner. So by default, they are borne by the firm only. Whether remuneration is paid to a partner for revaluation or not. Now write down various cases, the entries of revaluation expenses in various cases. First case is expenses are borne and paid by the firm. Borne means have to be paid. मतलब expenses firm ने ही पे करने थे as per the agreement और firm ने ही पे किए, तो entry हो जाएगी revaluation account debit to cash or to bank account. Second case, expenses borne by the firm and paid by partner. Expenses were to be paid by the firm but actually have been paid by a partner. तो किसी पार्टनर ने अगर फर्म के एक्सपेंसेस पे कर दिए, इन अ वे उसने कैपिटल और इंट्रोड्यूस कर दी, तो उसकी कैपिटल बढ़ जानी चाहिए. ठीक है, तो उसके लिए एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन. हम रीवैल्यूएशन से उसकी कैपिटल में उतना अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे. Revaluation account debit to partners capital account. Third case, expenses borne and paid by partner. Borne में लास्ट में ई लगाना जरूर ध्यान रखना, नहीं तो और कुछ मीनिंग हो जाएगा उस borne का. Expenses
borne and paid by partner, मतलब एग्री हुआ था कि कोई पार्टनर एक्सपेंसेस पे करेगा और पे भी उसी ने किए, तो फिर फर्म की बुक्स में किसी एंट्री की जरूरत ही नहीं है, सो नो एंट्री। Fourth possibility is expenses borne by partner and paid by the firm. It was agreed, suppose, that B will pay the revaluation expenses, but actually expenses have been paid from the cash or from the bank account of the firm. तो एक तरह से ये ड्राइंग्स हो गई पार्टनर की, जो उसने पे करना था वो फर्म ने पे किया, तो पार्टनर की ड्राइंग हो गई है एक तरह से। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और टू बैंक अकाउंट। Fifth possibility is expenses borne by one partner and paid by another partner. Suppose X ने पे करने थे रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस, लेकिन पे कर दिए Y ने, तो अब X की कैपिटल से उतना अमाउंट हम Y की कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। एंट्री हो जाएगी X's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू Y's कैपिटल अकाउंट। यहां तक क्लियर? Now we come to a very important and interesting subtopic, adjustment of capitals in profit sharing ratio. Sometimes in the question, one adjustment is given which states that partners agreed to adjust their capitals in their new profit sharing ratio. रेशियो चेंज होने के बाद अब जो न्यू रेशियो है, पार्टनर्स ने डिसाइड किया उनकी कैपिटल्स उसी प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, उसी रेशियो में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमें कैसे करना है? फर्स्ट स्टेप, राइट डाउन, फाइंड आउट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एज स्टेटेड इन द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में टोटल कैपिटल देने के भी कई तरीके हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ए, total capital of the firm given in the question directly. Let us say the question says total capital of the new firm will be 10 lakh rupees. तो directly दे दी total capital. Or second possibility is question says calculate total capital of the firm on the basis of any partner's capital. Or it says capitals are to be adjusted on the basis of any partner's capital. ठीक है, ब्रैकेट में लिखो एडजस्टेड कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ प्रॉफिट शेयर। सपोज ए बी सी आर पार्टनर्स। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि बी की कैपिटल के बेसिस पर पार्टनर्स की कैपिटल्स एडजस्ट करनी है इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सपोज देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3:2। ठीक है, B's adjusted capital means after all adjustments, revaluation भी क्लोज हो गया, उसका गेन या लॉस कैपिटल्स में ट्रांसफर हो गया, बाकी सारी एडजस्टमेंट्स भी हो गई। अब जो बैलेंस आ रहा है कैपिटल का, दैट इज कॉल्ड एडजस्टेड कैपिटल। सपोज बी की एडजस्टेड कैपिटल 5:3:2 न्यू रेशियो है। बी की एडजस्टेड कैपिटल मींस कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स is coming out to 30,000 rupees. How much? 30,000, 30. ठीक है, अब B की एडजस्टेड कैपिटल है 30,000 और उसका न्यू रेशियो में शेयर है 3/10, 5:3:2। तो इसका मतलब उसकी कैपिटल के बेस पे फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 30,000 जो उसकी कैपिटल है इंटू 10/3, उसके शेयर का रेसिप्रोकल। ठीक है, तो 30,000 का 10/3 किया तो 1 लाख आ गया। दैट मीन्स फर्म्स टोटल कैपिटल विल बी 1 लाख इन दैट केस। थर्ड पॉसिबिलिटी इज दैट नो बेसिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, कि कैपिटल्स किसके बेस पे एडजस्ट करनी है ये भी नहीं दे रखा, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म भी नहीं दे रखी। उस केस में क्या करेंगे? सब
पार्टनर्स, जितने भी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, उनकी सबकी एडजस्टेड कैपिटल्स को ऐड कर दो एंड टेक दैट एज द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। सपोज बी की एडजस्टेड कैपिटल आ रही है 30,000, ए की आ रही है 40,000 और सी की आ रही है 50,000। तो 40 प्लस 30 प्लस 50, 1,20,000 विल बी द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। तो फर्स्ट स्टेप में ये टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एसर्टेन करनी है। Then next step, divide the total capital in new profit sharing ratio. जो total capital आ गई, let us say 10 lakh of the new firm, उसे new profit sharing ratio में divide कर दो। 5:3:2 अगर रेशियो है तो 5 lakh, 3 lakh and 2 lakh। Write the amounts arrived in each continuing partner's capital account as balance carried down। अब ये हमने निकाला क्या है कि इतना इतना इनके कैपिटल में अब बैलेंस होना चाहिए, तो इतना इतना इनकी कैपिटल में बैलेंस कैरिड डाउन होना चाहिए। जनरली हम बैलेंसिंग फिगर कैपिटल की लिखते हैं बैलेंस कैरिड डाउन, लेकिन इस केस में जो हमने कैपिटल्स निकाली न्यू रेशियो में डिवाइड करके, उन्हें हम लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। कैपिटल अकाउंट में नीचे से 2 लाइन छोड़कर थर्ड लास्ट लाइन में लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, जितना जितना अमाउंट हमने सेकंड स्टेप में निकाला हर पार्टनर का। ठीक है, नाउ वी विल फाइंड आउट द डिफरेंस इन कैपिटल अकाउंट्स। एज आई सेड, डिफरेंस को जनरली हम बैलेंस कैरिड डाउन लिखते हैं, बट इन दिस केस बैलेंस कैरिड डाउन तो हमने पहले ही लिख लिया है। तो अब जो डिफरेंस आएगा, इसका मतलब उतनी कैपिटल किसी पार्टनर की रिड्यूस करनी है या इंक्रीज करनी है। डेबिट साइड पर अगर आ रहा है डिफरेंस, तो इसका मतलब उतने अमाउंट से उस पार्टनर की कैपिटल रिड्यूस करनी है, डेबिट करनी है। अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पर आ रही है, तो इसका मतलब इतने अमाउंट से और उसकी कैपिटल इंक्रीज करनी है, to adjust it in the new ratio. So वहां पर हम क्या लिख देंगे, टू बैंक अकाउंट। डेबिट साइड पे आ रहा है तो, क्रेडिट साइड पे आ रहा है तो बाय बैंक अकाउंट से उतना अमाउंट लिख देंगे। ठीक है, या हो सकता है क्वेश्चन में हमें दिया हो कि ये कैपिटल एडजस्टमेंट करंट अकाउंट के थ्रू करनी है। ठीक है, तो हम बाय पार्टनर्स, सपोज ए का डेबिट साइड क्रेडिट साइड पे आ रहा है 10,000 बैलेंसिंग फिगर, तो हम लिख देंगे बाय एज करंट अकाउंट 10,000। सपोज सी का डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ रही है 20,000, हम लिख देंगे टू सी इज करंट अकाउंट 20,000 सी के कॉलम में, एंड सो ऑन। लेकिन वो तभी करना है जब क्वेश्चन स्पेसिफिकली कहे कि करंट अकाउंट्स के थ्रू करनी है। अदरवाइज अगर कुछ स्पेसिफाइड नहीं है क्वेश्चन में कि एडजस्टमेंट बैंक के थ्रू करनी है या करंट अकाउंट के थ्रू, तो बाय डिफॉल्ट वी शुड डू इट थ्रू बैंक। ठीक है, जिसके डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आ रही है, टू बैंक अकाउंट लिख के उसके कॉलम में बैलेंसिंग फिगर का अमाउंट लिख दो। जिस पार्टनर के कॉलम में क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ रही हो, वहां पे बाय बैंक अकाउंट लिख के बैलेंसिंग फिगर का अमाउंट लिख दो। ठीक है, इससे कैपिटल्स एडजस्ट हो जाएंगी। जहां पर कैपिटल में अगर डेबिट साइड पे टू बैंक अकाउंट लिखा है, तो बैंक अकाउंट में वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल। कैपिटल में अगर क्रेडिट साइड पे आया है बाय बैंक अकाउंट, तो बैंक में डेबिट साइड आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और ये जो बैलेंस कैरिड डाउन हमने लिखे थे कैपिटल्स के, ये हम बैलेंस शीट में दिखा देंगे एज न्यू बैलेंसेस ऑफ कैपिटल। Now let's do an illustration to understand this concept of capital adjustment along with other adjustments. ये क्वेश्चन लिख लो पहले, illustration 7. Vanshita, Tanya and Anshika are partners sharing profits in the ratio of 1:2:2. Their balance sheet as at 31st March 2020 was, बैलेंस शीट दी हुई है, कैपिटल्स के अमाउंट दिए हुए हैं, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व है, क्रेडिटर्स हैं। एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग, डेटर, स्टॉक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक इज गिवन।
अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, जब भी हमें कैपिटल्स एडजस्ट करनी है और बैंक के थ्रू करनी है तो वर्किंग नोट्स में बैंक अकाउंट भी बना लेंगे हम, टू फाइंड आउट द न्यू बैलेंस ऑफ बैंक। एडजस्टमेंट्स में क्या दिया हुआ है, दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1:2, ये न्यू शेयर हो गया, न्यू रेशियो। दे ऑल्सो एग्रीड टू एप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एडजस्टमेंट्स मार्क कर लेते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग के आगे लिख लो 1। क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये डेटर्स से रिलेटेड है तो डेटर्स के आगे लिख लेंगे 2। देन वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल, इससे रिलेटेड तो बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं है तो मार्क करने की जरूरत नहीं है, अलग से होगा ये। एडजस्ट कैपिटल्स, ये तो लास्ट में होगी, चाहे ये फर्स्ट पॉइंट पे दे रखी हो हमें, चाहे कहीं पे भी दे रखी हो। कैपिटल एडजस्टमेंट वाली एडजस्टमेंट हमेशा लास्ट में ही हो सकती है, सारी एडजस्टमेंट्स के बाद। क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन, अब इससे रिलेटेड वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व दिया हुआ है हमें बैलेंस शीट में, तो उसके आगे लिख लेंगे 5। Revaluation expenses 10,000 were to be borne by Tanya but were paid by the firm, ठीक है, ये अलग से हो जाएगी। Prepare necessary accounts and balance sheet after all these changes, पहले ये क्वेश्चन लिख लो और फॉर्मेट्स बना लो कैपिटल अकाउंट्स के। कैपिटल अकाउंट्स में 3 पार्टनर्स हैं, अमाउंट कॉलम 3 में डिवाइड होगा, वंशिता, तान्या, अंशिका। अराउंड 10 लाइंस का कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना लो। रीवैल्यूएशन अकाउंट अराउंड 5 लाइंस का बना लो। बैंक अकाउंट अराउंड 5 लाइंस वर्किंग नोट्स में, और नई बैलेंस शीट भी बनानी है। सो बैलेंस शीट ऑफ वंशिता, तान्या एंड अंशिका एज एट 1 अप्रैल 2020, अराउंड 10 लाइंस का ये फॉर्मेट बना लो। ये सब फॉर्मेट्स बना के बताओ, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। बन गए फॉर्मेट्स? ओके, लेट्स बिगिन नाउ। फर्स्ट आइटम गिवन इन द बैलेंस शीट इज कैपिटल्स। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले इनको प्लेस करने से पहले हम गेन या सैक्रिफाइस निकाल लेते हैं, क्योंकि गुडविल की ट्रीटमेंट के लिए हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। तो वर्किंग नोट्स में पहले हम गेन या सैक्रिफाइस निकाल लेते हैं। सो लिखो वर्किंग नोट्स में, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर इज इक्वल टू गेन ऑब्लिक सैक्रिफाइस। वंशिता का न्यू शेयर है 2/5, 2:1:2 रेशियो है तो 2/5। ओल्ड था 1:2:2, इसका मतलब ओल्ड उसका शेयर था 1/5, सो 2/5 माइनस 1/5, तो इसका गेन आ गया 1/5। पहले इसे 1/5 शेयर मिलता था, अब 2/5 मिल रहा है, यानी 1/5 शेयर गेन हो गया। तान्या के केस में न्यू है 1/5, ओल्ड था 2/5, तो ऑपोजिट हो गया, इसका सैक्रिफाइस आ गया माइनस 1/5। And in case of Anshika, earlier also she was getting 2/5, now also she is getting 2/5, so no gain, no sacrifice. So gain or sacrifice is 0. Now कैपिटल्स का बैलेंस कहां पर आएगा? कैपिटल अकाउंट्स में क्रेडिट साइड पर, डेट कॉलम में 1/4/20, देन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,50,000, 6 lakh and 4 lakh. नेक्स्ट वी आर गिवन वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 90,000, लेकिन एडजस्टमेंट भी है। क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन वाज 30,000, तो जो क्लेम वाला अमाउंट है वो तो क्लेम में आ जाएगा, कहां पर? बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड पे। रिमेनिंग 60,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे कैपिटल्स में ओल्ड रेशियो में। तो कैपिटल में बाय वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट
60,000 को 1:2:2 ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे तो 12,000, 24,000, 24,000 और लायबिलिटीज में आ गया वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम 30,000। ठीक है, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में आ जाएंगे 70,000। Now moving to the asset side, land and building 15 lakh, but adjustment says appreciated by 10%, मतलब 1,50,000 से वैल्यू इंक्रीज करनी है इसकी। तो एसेट साइड पे हम लिखेंगे बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग ब्रैकेट्स में 15 लाख प्लस 1,50,000, तो अमाउंट कॉलम में आ जाएगा 16,50,000। और ये जो 1,50,000 हमने इंक्रीज किया है ये रीवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाएगा क्रेडिट साइड पर बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 1,50,000। देन नेक्स्ट आइटम इज डेटर्स 35,000 एसेट्स में लिखेंगे, लेकिन इसकी भी एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम में लिखेंगे 35,000। क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 10%। 35,000 का 10% कितना हुआ 3,500। तो डेटर्स के नीचे लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस 3,500। नेट अमाउंट आ गया 31,500। और इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट 3,500। नेक्स्ट आइटम गिवन इज स्टॉक 50,000 एसेट्स में आ जाएगा एज इट इज। देन कैश इन हैंड will come in assets 25,000. कैश एट बैंक 1 लाख, बैंक का हम अकाउंट बना रहे हैं तो ये उसमें आ जाएगा डेबिट साइड पे वी विल राइट 1,420 इन डेट कॉलम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख। Now coming to the adjustments, appreciate land and building we have done, create provision for doubtful debts done, value of firm's goodwill 2,50,000, gain और sacrifice हम निकाल चुके हैं। So gaining partner has to compensate the sacrificing partner, that means और gain कितना है वंशिता का 1/5 gain है और तान्या का 1/5 sacrifice है। So 1/5 of 2,50,000, that is 50,000 rupees, is the value of goodwill to be adjusted. So entry will be Vanshita's capital account debit to Tanya's capital account 50,000. अब capitals में how will this be shown? On debit side 1,420 to Tanya's capital account in Vanshita's column 50,000. ये कॉलम में बहुत ध्यान से लिखना है, कहीं यहां पे टू तान्यास कैपिटल अकाउंट करो और तान्या के कॉलम में ही लिख दो तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो वेरी केयरफुली यू हैव टू राइट द अमाउंट्स इन द करेक्ट कॉलम। एंड क्रेडिट साइड में तान्या के कॉलम में आना है और पर्टिकुलर्स में आ जाएगा बाय वंशितास कैपिटल अकाउंट 50,000। ये हो गई गुडविल की एडजस्टमेंट। Adjust capitals in new profit sharing ratio. As I said, this will be done in the end after all other adjustments have been done. We cannot do it first. Claim for workman compensation we have already treated. Revaluation expenses rupees 10,000 were to be borne by Tanya but were paid by the firm.
तो एक तरह से तान्या की ड्रॉइंग्स हो गई है, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, तान्यास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो कैपिटल्स में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट इन तान्यास कॉलम 10,000 एंड सेकंड इफेक्ट विल कम इन बैंक अकाउंट बाय तान्यास कैपिटल अकाउंट 10,000, ठीक है। सारी एडजस्टमेंट्स हो गई। अब सबसे पहले हम क्लोज करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट को। 1,50,000 इधर है, 3,500 इधर है, सो डिफरेंस इज 1,46,500 डिवाइडेड इन द ओल्ड रेशियो ऑफ 1:2:2। तो हम लिखेंगे डेबिट साइड पे टू पार्टनर्स कैपिटल्स, वंशिता 29,300, तान्या 58,600, अंशिका 58,600. Total of all these three 1,46,500 and revaluation total on both sides 1,50,000. Then we will transfer these amounts in the capital accounts. On credit side we will write by revaluation account 29,300, 58,600 and again 58,600. अब बारी आती है उस एडजस्टमेंट की जो हम कह रहे थे लास्ट में होगी, एडजस्ट कैपिटल्स इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके लिए थोड़ी और वर्किंग हमें करनी होगी, वर्किंग नोट्स में आगे कंटिन्यू करते हैं। एडजस्टेड कैपिटल, वंशिता के केस में देखो क्रेडिट में क्या क्या है, 5,50,000 प्लस 12,000 प्लस 29,300 एंड ऑन डेबिट साइड 50,000 इज देयर, तो वो माइनस कर देंगे। मींस adjusted balance in Vanshita's capital is 5,41,300. Now in this question, we are not given on what basis the total capital of the firm is to be calculated for adjustment purpose. When no basis is given, we will add up the adjusted capitals of all the continuing partners. तो वंशिता की adjusted capital आ गई 5,41,300 rupees. Similarly, in case of Tanya, 6 lakh plus 24,000 plus 50,000 plus 58,600 and minus 10,000. So Tanya's adjusted capital is rupees 7,22,600. Then Anshika's adjusted capital 4 lakh plus 24,000 plus 58,600. डेबिट में कुछ भी नहीं है तो माइनस कुछ नहीं होना. So Anshika's adjusted capital is rupees 4,82,600. Total of the adjusted capitals of all three is rupees 17,46,500. Next step, we will divide this total capital in the new ratio of 2:1:2 and the amounts we get is 6,98,600, rupees 3,49,300 and rupees 6,98,600. Now, what do we have to do with these amounts? Yes, we will write them as balance carried down in capital. So, एक लाइन छोड़कर लिखना, क्योंकि अगर किसी का बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे आनी हो तो वो बैलेंस कैरिड डाउन से पहले आनी चाहिए. उसके लिए एक लाइन छोड़कर टू बैलेंस कैरिड डाउन 6,98,600, 3,49,300 and again 6,98,600. Now we will find out the balancing amount of capitals.
अगर हम देखें वंशिता की कैपिटल होनी चाहिए 6,98,600, ऑलरेडी उसमें बैलेंस कितना है 5,41,300. दैट मीन्स द क्रेडिट साइड इज शॉर्ट बाय 1,57,300. तो वहां पे हम लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट 1,57,300 in Vanshita's column. Similarly, अंशिका के केस में भी अगर हम देखें तो 6,98,600 होना चाहिए, जबकि ऑलरेडी कितना है 4,82,600. तो इसकी भी बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे आ रही है. बाय बैंक अकाउंट हमने लिखा हुआ है, उसी के आगे अंशिका के कॉलम में लिख देंगे 2,16,000 जो बैलेंसिंग अमाउंट आ रहा है. और बैंक अकाउंट में इनका सेकंड इफेक्ट आ जाएगा इन दोनों का. to Vanshita's capital account 1,57,300 and to Anshika's capital account 2,16,000. In case of Tanya, adjusted capital is 7,20,600, जबकि चाहिए कितनी 3,49,300. तो उसका कैपिटल का अमाउंट कम करना है. बैलेंसिंग फिगर इज कमिंग ऑन डेबिट साइड. तो यहां पर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट तान्या के कॉलम में 3,73,300, द डिफरेंस और द बैलेंसिंग अमाउंट. And its second effect in bank account on credit side. By Tanya's capital account 3,73,300. Now we will write totals in the capitals, capital accounts on both sides. 7,48,600, 7,32,600 and 6,98,600. After which we will write balance brought down on the credit side. 6,98,600, 3,49,300 and 6,98,600. ये हो गई कैपिटल्स एडजस्ट. Now these adjusted balances of capitals will be shown in balance sheet. Liabilities side, capitals, Vanshita 6,98,600, Tanya 3,49,300 and Anshika 6,98,600. इन तीनों का टोटल 17,46,500 जो हम ऑलरेडी यहाँ पे वर्किंग नोट्स में कैलकुलेट कर चुके थे. Now let us close bank account. The total of bank account is 4,73,300 and credit side is short. So by balance carried down 90,000. And after writing total on both sides, on debit side, to balance brought down 90,000. And this balance will be shown in assets. In balance sheet, cash at bank 90,000. Now let's total the balance sheet. 17,46,500 plus 30,000 plus 70,000. कितना हो गया? 18,46,500. और assets का total भी check कर लो. That should also be the same amount, 18,46,500. Any doubt? No? Okay, so this completes our concept of reconstitution of partnership along with capital adjustment. Thank you.